दैट शुड बी लाइक इन सिमेट्री, किसी भी तरह का एक्सिस ऑफ सिमेट्री वहां पे नहीं होगा। दैट शुड लाइक इन एक्सिस ऑफ सिमेट्री। सेकेंडली, दैट शुड हैव द chiral center, or you can say asymmetric carbon। और तीसरा, these forms are non superimposable to each other, मतलब उसका जो मिरर इमेज होगा that cannot be superimposed, and in that case such a molecule is called as a chiral molecule of which image cannot be superimposed over it। तो हम देखते हैं इसको, एक्सिस ऑफ सिमेट्री कैसा होता है। So if we take this alphabet X, this is one of the alphabet, or you can have that E, or you can have this Z. This has the axis of symmetry, this has the axis of symmetry। इसमें तो कई सारे axis of symmetry आपको मिल सकते हैं। So these are symmetric molecules that having one axis as an axis of symmetry। If you cut this in this direction or in this direction or in this direction, then that will form an equal part। So that इसका यदि mirror image भी लेते हैं आप, तो that will not be superimposed over that। If you take a P and if you place a mirror about this one, then how it will look like? इसमें कोई एक्सिस ऑफ सिमेट्री नहीं होगा। इस ऑब्जेक्ट में एक्सिस ऑफ सिमेट्री नहीं है, देयर इज अ लैक ऑफ सिमेट्री। सो दिस विल प्रोड्यूस इट्स नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज, सो दैट इट कुड बी ऑप्टिकली एक्टिव। ये ऑप्टिकली एक्टिव हो सकता है, जबकि ऊपर में जो मैंने लिखे हैं दे आर द सिमेट्रिक ऑब्जेक्ट एंड दे डू नॉट हैव दैट प्रॉपर्टी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में सिमेट्री का नहीं होना हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वन थिंग। सेकंड थिंग, उसके अंदर एक ऐसा कार्बन होना चाहिए जिसकी चारों वैलेंसीज अलग अलग आइटम्स और ग्रुप ऑफ आइटम से सेटिस्फाई होना चाहिए। तो ऐसे एक मॉलिक्यूल लेते, हम कल भी लिए थे हमने प्रीवियस लेक्चर में। This one is your 2-chlorobutane। Now if you have this observation, this carbon is bonded with methyl, ethyl, then chlorine and then hydrogen। 4 different species are associated with this carbon, so this carbon will be a symmetric carbon। Now if a mirror is placed in front of this molecule, then its image will be like this। So these are called as non-superimposable mirror images of each other, and this relationship is called as non-superimposable mirror image relationship। So this image cannot be superimposed over this one thing। तो यहाँ पे लिखा they forms non-superimposable mirror images of each other। One thing, they should have that asymmetric carbon, and in this case this compound will be optically active। तो इसके ऑप्टिकल आइसोमर्स भी होंगे। ऑप्टिकल आइसोमर्स क्या होते हैं? डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ द सेम कंपाउंड व्हिच आर नॉन सुपर इम्पोजेबल ऑफ ईच अदर। वन थिंग। सेकंड थिंग, दे रोटेट द प्लेन ऑफ पीपीएल इन अपोजिट डायरेक्शंस। यहाँ पे दिस कंपाउंड विल रोटेट इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, सो दिस इज कॉल्ड एज डी आइसोमर, whereas this compound will rotate the plane of PPL in anti-clockwise direction, so in that case that will be called as an L isomer। डी एंड एल आइसोमर समझ में आगे दोनों? डी आइसोमर वो होता है दैट कैन रोटेट द प्लेन ऑफ पीपीएल इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, व्हेreas एल आइसोमर वो होता है दैट कैन रोटेट द प्लेन ऑफ पीपीएल इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है, चलते आगे। इन दोनों का कॉम्बिनेशन करके हमने एक तीसरा फॉर्म भी बनाया था कॉल्ड एज
DL mixture, or you can have that plus minus mixture, or you can have that racemic mixture. इसमें क्या होता है? Equimolar mixture of dextro and levo isomers of same compound equimolar mixture of dextro and levo isomers of the same compound which is optically active, which is optically inactive due to, why it is optically inactive? It is optically inactive due to external compensation. Particular word use किया था हमने, due to external compensation, and such a mixture is called as a DL mixture or racemic mixture or plus minus mixture. It is optically inactive. Inactive क्यों होता है कि because उसमें का जो 50% पार्ट है वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी है, मतलब क्लॉकवाइज रोटेट करेगा प्लेन को, और जो दूसरा फॉर्म है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन से रोटेट करेगा। दोनों का जो अल्टीमेट रिजल्टेंट होगा वो जीरो रहेगा। मींस हम तो यही बोलेंगे कि दैट कंपाउंड कैन नॉट रोटेट, दैट मिक्सचर कैन नॉट रोटेट द प्लेन ऑफ पीपीएल इन क्लॉकवाइज और इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, सो इट इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। इतना हमने प्रीवियस लेक्चर में कंप्लीट किया था। चलते आगे। Now these isomers have almost same chemical properties. देखिए 2-chlorobutane बोल रहे आप, 2-chlorobutane यदि है तो उसका कंप्लीट केमिकल प्रॉपर्टीज हो डेक्स्ट्रो फॉर्म में हो चाहे लिवो फॉर्म में हो, तो डेक्स्ट्रो एंड लिवो forms of same compound have similar chemical properties. इससे केमिकल प्रॉपर्टीज में कोई डिफरेंस हमको देखने को नहीं मिलेगा। ऑलमोस्ट ऑल केमिकल प्रॉपर्टीज विल बी सेम। सेकेंडली, सर हाँ जी, हाँ मी माझा माईक बंदच ठेवते कारण की माझी तब्येत खराब आहे, मग मला खोकला येते म्हणून। अच्छा ठीक है, नो प्रॉब्लम, ठीक है। It may have the different spatial arrangement. They have the different spatial arrangement of the atoms or the groups bonded with कायरल कार्बन। असिमेट्रिक कार्बन को हमने एक दूसरा नाम दे दिया है कायरल कार्बन, ठीक है। तो यहाँ पे इनमें सिर्फ एक डिफरेंस देखने को मिल सकता पर्टिकुलरली, वो है स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट ऑफ द आइटम्स और द ग्रुप्स बॉन्डेड विद दैट कार्बन। सबसे बड़ी बात होती है कि द डिफर इन ऑप्टिकल रोटेशन। ये जो आइसोमर्स होते हैं इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज ऑलमोस्ट सेम होती है, सिर्फ डिफरेंस है आपका स्पेटल अरेंजमेंट का, पर्टिकुलर आइटम्स और ग्रुप का बॉन्डेड विद द कायरल कार्बन। दे मे डिफर इन देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज सच एज मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट,
और सबसे बड़ी बात यह है कि दे डिफर इन देयर ऑप्टिकल रोटेशन, दे डिफर इन ऑप्टिकल रोटेशन, दैट इज डिफरेंट फॉर ईच। ऑप्टिकल रोटेशन के मामले में ये काफी एक दूसरे से अलग होते हैं। तो ये जो ऑप्टिकल रोटेशन है, जो प्लेन ऑफ पीपीएल है वो रोटेट होगा इन क्लॉकवाइज और इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शंस। In that case, that particular angle through which that plane is rotated, that is called as optical rotation or angle of rotation. तो ये जो rotation होता है, that is used to check the purity of the organic compound, whether it is pure or not. Because pure form में जो optical rotation होता है वो scientifically measure किया गया हुआ है, and in accordance with that हम जब हमारे ग्लूकोज का ऑप्टिकल रोटेशन मेजर करेंगे, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज स्पेसिफिक रोटेशन। जब हम मेजर करेंगे तो उसके साथ हम कंपेयर करके बता सकते हैं कि वेदर दैट गिवन कंपाउंड इज प्योर और नॉट। ओके, सो वी हैव दैट 2-chlorobutane, one compound. This is optically active. We can have the another compound, 2-butanol. This is optically active. इन दोनों में एक एक कायरल कार्बन होगा। इसके आइसोमर कितने बनेंगे? 2^n, where n is number of asymmetric carbon. यहाँ पे जो कायरल कार्बन है, that is asymmetric कार्बन, वो कितने हैं? डिपेंडिंग ऑन दैट इसके नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स बनेंगे। ऑप्टिकल आइसोमर्स बनाने हैं हमको, कितने बनेंगे? तो जितने असिमेट्रिक कार्बन दिख रहे हैं आपको फिलहाल, उसके हिसाब से 2^n मीन्स 2^1. So 2 optical isomers will be there. So optical isomers यहाँ पे एक असिमेट्रिक कार्बन मिल गया मेरे को, तो उसके हिसाब से 2^n होना चाहिए। If we go for the glucose, then what is there? Just check. ग्लूकोज में क्या होता है देखते हैं। ग्लूकोज जो है, दिस इज अ मल्टी फंक्शनल कंपाउंड, जिसमें हाइड्रोक्सी ग्रुप भी है पर्टिकुलरली, और एक अल्डिहाइडिक ग्रुप भी है। तो हम तो लिखते तो बड़ा सुंदर C6H12O6, ग्लूकोज ऐसे लिखते हैं, लेकिन स्ट्रक्चरली जब बात आती है, ओके, if you count the number of carbon 1 2 3 4 5 6, कैसे भी शुरू करो। यहाँ पे अल्डिहाइडिक ग्रुप है 1 2 3 4 5 and 6. 6 carbon atoms are there, right? Now go to the hydrogen. First of all oxygen, 1 2 3 4 5 6 आ गया, ये आ गया, ये आ गया। Go to the hydrogen, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Now if you go for this carbon, carbon number 2, ये वाला, then this has one CHO group, one OH group and one H, and remaining is a single, this one remaining two species that is considered as a single group. In that case this carbon will be asymmetric carbon. ये जो कार्बन है that will be asymmetric carbon. इसमें चार अलग अलग स्पेसीज कौन सी लग रही है? एक हाइड्रोजन, सॉरी एक CHO ग्रुप, एक OH ग्रुप, एक हाइड्रोजन, 3 हो गया। और चौथा जो है ये पूरा का पूरा यूनिट जो है नीचे बैठा हुआ, दैट इज अ फोर्थ स्पीसीज दैट इज बॉन्डेड विद दैट कार्बन। यू गो टू द कार्बन नंबर 3, देन दिस विल बी आल्सो असिमेट्रिक, बिकॉज इसके ऊपर का पूरा एक यूनिट, नीचे का पूरा दूसरा यूनिट, ये तीसरा और ये चौथा, चार अलग अलग एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स उसमें लगे होने चाहिए, तो वो असिमेट्रिक बोला जाता है। तो यहाँ पर भी दूसरा कार्बन हो गया, दूसरा तीसरा हो गया। This is your carbon which is also bonded with, ऊपर पूरा एक यूनिट, नीचे में दूसरा, तीसरा और ये चौथा पूरा। Similarly, carbon number 5 is also
So in glucose, you will find that how many chiral carbon atoms are there? Or you can say the asymmetric carbon. N is equal to 4. तो अब इसके ऑप्टिकल आइसोमर कितने होंगे? So that can have the different structural arrangements, and in all 16 different forms are possible. 16 different forms are possible. In that case, this compound will show 16 optical isomers because it contains 4 chiral carbon or asymmetric carbon. You got this one? Okay. Yes. Then यहाँ तो ठीक है, ये एक जनरल फॉर्मूला मैंने आपको दे दिया है. बट इफ वी हैव द कंपाउंड विद n नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स एंड उसका जो एंड्स है, इधर CHO है, इधर CH2OH है, दिस सिमिलर एंड्स के साथ में है, तो दैट फॉर्मूला कैन बी यूज्ड एज a 2 raised to the power n. यू गॉट इट? दिस सिमिलर एंड्स के साथ में ये फॉर्मूला काम करता है. इसके पहले भी आपने जो किया था 2 क्लोरोब्यूटेन या 2 ब्यूटेनॉल, वहां पर भी डिसिमिलर एंड्स है, तो यहाँ पे इतना फॉर्मूला काम करेगा. तो अब हम लिखेंगे पर्टिकुलरली ends of the compound are dissimilar. Then number of optical isomers will be equal to 2 raised to the power n. 2 raised to the power n will be the number of optical isomers. यदि सिमिलर एंड्स आ जाए उसके अंदर तो ये हो जाता है 2 raised to the power n minus 1. Here. Ends are similar, C2H5, CH, CH3 और इधर का रिमेनिंग यूनिट. तो ends are similar. Then with the similar ends, then number of optical isomers will be equal to 2 raised to the power n minus 1. Ends are similar. Two raised to the power n minus 1. And now similar ends with a odd number. अभी देखिए यहाँ पे दोनों जो है that is even number. इसके पहले भी आया था 2, that was even number. इसके पहले ग्लूकोज लिया, उसमें even number of asymmetric carbon atoms were there. And now we have the molecule in which odd number of carbon atoms are there, which are chiral, and they have the similar ends. कब रहेगा ये? n is even. यदि odd number है तो फिर से आपको क्या करना चाहिए, वो लिख देते हैं यहाँ पे. ये समझ में आ रहा है पूरा? ठीक है.
odd number of chiral carbons are there, in that case इसी में हम करने की कोशिश करते हैं. ओके, now the ends are similar. Ends are similar, but odd number of carbon atoms are there. In that case, total number of optical isomers, फिर optically active isomers जो रहेंगे वो होगा number of optical isomers will be equal to 2 raised to the power n minus 1 plus 2 raised to the power n minus 1 by 2. इसका मतलब इसके 9 नहीं बनेंगे, इसके ऑप्टिकल आइसोमर्स 9 नहीं बनेंगे. कितने बनेंगे देखते हैं. अभी कितना है 3, n इज इक्वल टू 3. ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, ये पूरा अलग है. ठीक है, अब n इज इक्वल टू 3 रखते हैं तो देखते हैं क्या होता है. नंबर ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव फॉर्म्स 2 raised to the power 3 minus 1, that is 2, plus 2 raised to the power n minus 1, 3 minus 1, 2 by 2. Okay, so that will be 4 plus 1. 5 isomers will be there, not 9. ये कब होता है? जब ends are similar. Ends are similar, but number of chiral centers are odd number. In that case, the formula is 2 raised to the power n minus 1. Sir, Okay, one thing. हाँ, twoच होईल ना. क्या बोले? 2 चा power 1 तर 2च होईल ना. हाँ ठीक है ना, माइनस चाहिए मेरे को यहाँ पे, लेकिन now see 4. हाँ, तो कितने आइसोमर बनने हैं इसके? ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर्स कितने बनेंगे इसके? ओनली 2. यहाँ पे माइनस साइन है. 2 raised to the power n minus 1 minus 2 raised to the power, ब्रैकेट लगा देते हैं, दैट्स बेटर. यहाँ पे यदि मैं तीन कायरल कार्बन ले लूं तो इसका जो आइसोमर बनेगा वो रहेगा इस फॉर्मूले के हिसाब से 3 minus 1 2, 2 raised to the power 2 means 4, then 2 raised to the power 3 minus 1 2, 2 by 2 is 1, so 4 minus 2, that will be only 2 isomers that will be optically active. So these are the differences, very small or minute differences are there, and that are used to calculate, or directly you can calculate the number of optical isomers. Dissimilar end में शायद डायरेक्ट फॉर्मूला, और इवन कुछ नहीं, और इवन कुछ भी नहीं. डिसिमिलर एंड्स में वो जनरल हो गया आपका 2 raised to the power n. डिसिमिलर एंड में कोई दिक्कत नहीं है, 2 raised to the power n. लेकिन सिमिलर एंड्स रहा तो इवन नंबर में आप अलग कर रहे हैं और ऑड नंबर में आप अलग कर रहे हैं. जब इवन नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स आर देयर, देन यू हैव 2 raised to the power n minus 1. इवन एन में 2 raised to the power n minus 1, और ऑड एन में नंबर ऑफ आइसोमर्स 2 raised to the power n minus 1 minus 2 raised to the power n minus 1 by 2. और डिसिमिलर एंड में हमारा इवन ऑड कोई है ही नहीं, दिक्कत नहीं है. 2 raised to the power n यूज कर लो, यू कैन कैलकुलेट द नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स. ओके, so this is a one type of isomerism where there is a difference in optical rotation of the compound. इसमें और एक फॉर्म होता है मेसोफॉर्म, वो एक बार पढ़ा देते हैं फिर रुक जाएंगे यहाँ पे. तो ये हटा देता हूं मैं अभी. मेसोफॉर्म के लिए मेरे को एक पर्टिकुलर कंपाउंड की जरूरत पड़ेगी, या that has asymmetric carbon atoms. See this one. Then यहाँ पे एक OH,
So if you find this one, then this will be your asymmetric carbon, this will be a symmetric carbon. But this molecule has an axis of symmetry. एक ही मॉलिक्यूल में दो असिमेट्रिक कार्बन है. अब यहां से यदि एक्सिस ऑफ सिमेट्री आप डाल देते हैं, देन half part of this molecule is a mirror image of remaining half part. Half part of this molecule is a mirror image of remaining half part. So that has a plane of symmetry that divides the molecule in two equal forms, and in that case this compound will be called as mesoform, and this is optically inactive. This is mesotartaric acid. This one is mesotartaric acid. लेकिन ये एक OH इधर से आ जाता है, तो that is different part. That has a chiral center. दो असिमेट्रिक कार्बन उसके अंदर आपको दिख रहे हैं, बट उस मॉलिक्यूल में एक एक्सिस ऑफ सिमेट्री यदि आप लगा देते हैं तो ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा. रीजन is that this part will rotate the plane of PPL in this direction while this will rotate in this direction. जो ऑप्टिकल रोटेशन का पार्ट है, मॉलिक्यूल का आधा हिस्सा डेक्स्ट्रो रोटेटरी होगा और रिमेनिंग पार्ट ऑफ दैट मॉलिक्यूल इज लिवो रोटेटरी. In that case, such a molecule will have the plane of symmetry. That molecule will have the plane of symmetry, and in that case, जो एक्सटर्नल कॉम्पेंसेशन है, यहाँ पे हम इंटरनल कॉम्पेंसेशन बोलेंगे विद इन द मॉलिक्यूल इटसेल्फ. सो इस मॉलिक्यूल का आधा हिस्सा डेक्स्ट्रो और आधा हिस्सा लिवो रोटेटरी यदि हो जाता है, तो इन दैट केस जो D माइनस L जो है that will be 0, and that results into optically inactive form of this compound. This is a tartaric acid. एक specific example है ये tartaric acid. कौन सा? कहाँ मिलेगा, कौन से टाइप के प्लांट रिसोर्स में मिल सकता है ये? इमली मध्ये. यस, करेक्ट. नाम से ही पता चल गया. ठीक है. सो जहां पे एक्सिस ऑफ सिमेट्री मॉलिक्यूल को डिवाइड कर देगा इक्वल पार्ट में, दो इट हैज कायरल सेंटर्स. इसके अंदर कायरल सेंटर तो रहेगा, बट स्टिल half part of this molecule will rotate in anti-clockwise direction, whereas this will rotate in clockwise direction, and in that case the optical rotation जो है वो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, and in that case such a form is called as a mesoform. Okay, specific rotation. Then optical isomerism in a cyclic compound देख लेते एक आधा. तो यहाँ पे क्या होगा, दो लाइन है एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही, तो CH2 होना चाहिए, यहाँ पे CH2 होना चाहिए, यहाँ पे कार्बन होना चाहिए. Now this molecule will have the axis of symmetry, yes or no? Though this one, yes, it has an axis of symmetry, so this will be optically inactive. Though this carbon is asymmetric, this compound has an axis of symmetry, and that's why this compound will be optically inactive. One more. CH3Cl. So will it be optically active or not? No.
वाई? पहली बात तो एक ये है इसमें। दूसरी बात, इस मॉलिक्यूल को आप इक्वल पार्ट में डिवाइड नहीं कर सकते, चाहे जिधर से भी एक्सिस ऑफ रोटेशन लगा दो। ठीक है, इसका एक नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज भी बन जाएगा, एंड इन दैट केस दिस विल बी ऑप्टिकली एक्टिव, बिकॉज दिस कंपाउंड लैक्स इन एक्सिस ऑफ सिमेट्री। इसमें किसी तरह का सिमेट्री आपको नहीं मिल रहा है, तो इन दैट केस दिस विल बी ऑप्टिकली एक्टिव। लेकिन यदि मैं ये ले लूं